بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں محمد سلیمان خان۔ گوجرانوالہ کے نواحی علاقے ایمن آباد میں واقع 500 سال پرانی مسجد فن تعمیر کا عظیم شاہکار ہے۔ مسلم، سکھ اور ہندوؤں کی تعمیرات کی وارث اس لودھی مسجد کا طرز تعمیر انتہائی مہارت بھرا اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ تاریخی لودھی مسجد کی کہانی غضنفر شاہ کی زبانی دیکھیے۔ گوجرانوالہ کے نواحی علاقے ایمن آباد کی یہ تاریخی مسجد 1451 عیسوی میں لودھی دور حکومت میں تعمیر کی گئی۔ لودھی مسجد کی تعمیر میں چھوٹی اینٹ کے ساتھ ساتھ جپسم، چونا اور دالیں بھی استعمال کی گئیں۔ صدیوں پرانی یہ مسجد کسی ستون، لینٹر اور کنکریٹ کے بغیر آج بھی مضبوطی سے قائم اور دائم ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ یہ ایک انتظامیہ کی ستم ظریفی ہے کہ 500 سال پرانی تاریخی مسجد ہے جس کی شیب بابری مسجد سے ملتی جلتی ہے۔ وہ ہندوؤں نے شہید کر دیا ہے، انتہا پسند ہندوؤں نے، اور یہاں کرپٹ حکمران اور کرپٹ انتظامیہ نے عدم دلچسپی سے یہ شہید کرا دیا۔ اگر میں کہتا ہوں فل فار فور وہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے تاریخی، وہ لودھی دور کی، اور جو ایمن آباد قصبہ ہے وہ ایمن آباد سے ایک تاریخی، اس قصبے کی ایک تاریخی ہسٹری ہے، ٹھیک ہے۔ دیوان وہاں کے مشہور ہے، یہاں لودھی دور کی وہ مسجد ہے۔ اور میں یہی کہوں گا کہ فل فار فور ڈی سی صاحب سے مطالبہ کرو، ڈی سی گوجرانوالہ سے، کہ اس کو اپنی کسٹڈی میں لے کر اور اپنے آخرت کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی اپنا آخرت بھی سنوارے اور مسجد کو صحیح شیپ میں اور اس کو صحیح حالت میں آباد کیا جائے۔ خوبصورت گنبد والی لودھی مسجد کا شمار پاکستان کی سب سے قدیم مساجد میں کیا جاتا ہے۔ اس کے عقب میں کئی ایکڑ پر پھیلا ہوا تالاب شاندار لودھی حکومت کی یاد دلاتا ہے۔ جی بالکل، یہ جو مسجد ہے یہ بہت پرانی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد جو ہیں یہ بتاتے آ رہے ہیں کہ یہ مسجد بہت ہی قیمتی تھی، بہت ہی خوبصورت تھی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی ہے اور عبادت کے لیے بالکل بند ہو چکی ہے، اور یہاں بچے آ کر کرکٹ کھیلنے لگ جاتے ہیں، تالاب کا پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہ جو عبادت گاہ ہے اس کو دوبارہ تعمیر کر کے انتظامیہ لوگوں کے لیے عبادت کے لیے کھول دے۔ بابری مسجد سے مشابہت رکھنے والی یہ لودھی مسجد تاریخی مقامات سے دلچسپی رکھنے والے افراد کے لیے اہم سیاحتی مقام کا درجہ رکھتی ہے۔ حکام اگر اس اسلامی آثار قدیمہ کے نادر نمونے پر تھوڑی سی توجہ دیں تو سیاحت کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ کئی صدیاں پرانی یہ لودھی مسجد تاریخی جو ہے حیثیت رکھتی ہے، گوجرانوالہ کے اندر ایمن آباد کے اندر واقع ہے۔ اس کا آدھے سے زیادہ رقبہ جو قابضین نے اپنا قبضہ کر رکھا ہے، اور باقی جو ماندہ ہے اس کا رقبہ ہے اس پر جو ہے وہ کھنڈرات کے اندر یہ مسجد تبدیل ہو چکی ہے۔ ذیلی انتظامیہ سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کی رینوویشن کی جائے، سر نو اس کی تعمیر کی جائے تاکہ ایک قیمتی تاریخی اور مذہبی جو ورثہ ہے اس کی جو ہے حفاظت کی جا سکے۔ یہ گوجرانوالہ کا نوحی علاقہ ایمن آباد، جہاں بابری مسجد کی طرز کی بنی مسجد 500 سال پرانی لودھی مسجد جو کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے، اگر ضلع انتظامیہ اس پر توجہ دے اور اس کی تعمیر نو شروع کرے تو سیاحت کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین عدیل شاہ کے ساتھ غضنفر شاہ، اسپیشل ٹی وی، گوجرانوالہ۔ سٹی پولیس آفیسر گوجرانوالہ محمد ایاز سلیم کی ہدایت پر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری۔ تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن پولیس نے ملزمان کے قبضے سے 1 لاکھ روپے نقد، 5 عدد موٹر سائیکلیں اور اسلحہ برآمد کر لیا۔ عقیل اسماعیل کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ سٹی پولیس آفیسر گوجرانوالہ محمد ایاز سلیم کی ہدایت پر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری۔ تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن پولیس نے سابقہ ریکارڈ یافتہ شاہد عرف شادو ڈکیت گینگ کے 3 اراکین کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان رات کی تاریکی میں گھات لگا کر بیٹھے تھے کہ پولیس نے بروقت کارروائی کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا، جن کے قبضے سے 1 لاکھ روپے نقد، 5 موٹر سائیکلیں اور ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا گیا ہے۔
मुलजिमान डकैती, राहजनी और चोरी की संगीन वारदातों में मुलविस हैं। दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने गुजरांवाला और उसके मुजाफात में वारदातें करने का इंकशाफ किया। सिटी पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला मोहम्मद अयाज सलीम का कहना है कि डकैतों, चोरों और समाज दुश्मन अनासिर के साथ आहनी हाथों से निमटते हुए शहरियों को अमन की फजा फराहम करेंगे। मिंचनाबाद में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का फ्री आटा रमजान रिलीफ पैकेज इंतजामिया की करप्शन की नजर हो गया। मुफ्त आटे के 8000 थैले हिसाब किताब से गायब कर दिए गए। मोहम्मद इस्माइल की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। मिंचनाबाद में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का फ्री आटा रमजान रिलीफ पैकेज इंतजामिया की करप्शन के नजर हो गया। मुफ्त आटे के 8000 थैले हिसाब किताब से गायब हो गए। मिंचनाबाद रमजान पैकेज मुफ्त आटे के 8000 थैलों की मालियत 92,80,000 रुपए बनती है, जो बहुत बड़ी रकम है। जबकि मिंचनाबाद फ्री आटा पॉइंट पर गरीब आवाम 10 किलो आटे के एक थैले के लिए सुबह से शाम तक लाइनों में धक्के खाने के बावजूद मायूसी की हालत में खाली हाथ घर वापस चले जाते हैं। शहरी ने असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद के खिलाफ पहले भी रोड ब्लॉक करके मुजाहरा किया था। शहरियों का कहना है कि गरीब का हक इंतजामिया खा गई। अफसरान से करप्शन का हिसाब कौन लेगा? मिंचनाबाद के सियासी और समाजी हलकों ने वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब से इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा ने पीआर सेंटर चिन्योट में किसानों को बारदाने का इजरा करके गंदम खरीदारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मेहर अब्दुल रहमान ताहिर सियाल की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा ने पीआर सेंटर चिन्योट में किसानों को बारदाने का इजरा करके गंदम खरीदारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस सिलसिला में महकमा फूड की जानिब से एक मुख्तसर सी तकरीब का एहतमाम किया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने फीता काट कर और किसानों को बारदाना का इजरा करके गंदम खरीदारी मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर माजिद बिन अहमद, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर इंतसार जमीर और दीगर फूड डिपार्टमेंट के अफसरान और काश्तकार नुमाइंदगान मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर इंतसार जमीन ने डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि इस साल जिला चिन्योट में 50,000 मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी का टारगेट मुकर्रर किया गया है, जिसके लिए जिला में 5 गंदम खरीदारी मराकज कायम किए गए हैं, जिसमें तहसील चिन्योट में 2, तहसील लालिया में 2 और तहसील भवाना में 1 गंदम खरीदारी मरकज शामिल है। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा का कहना है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से किसानों को गंदम का बेहतरीन रेट दिया गया है। मुकर्ररा मुद्दत का मतलूबा टारगेट पूरा किया जाएगा और किसानों से गंदम का एक एक दाना खरीदा जाएगा और इन्हें इनकी मेहनत का पूरा मुआवजा दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेखुपुरा के सीनियर नायब सदर डॉक्टर असलम खान शेरवानी ने कहा है कि मुफ्त आटे के नाम पर कौम की तजलील जारी है। वफाकी हुकूमत की इस शोबाजी से कौम रुस्वा होकर रह गई है, जिसका हिसाब आने वाले इलेक्शन में ये कौम पूरा करेगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान किया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। लोगों की तजलील कम हो। आप देखें कि इसमें जो ना इस तरीके से तकसीम करने से कितनी करप्शन हो रही है, कितने केसेस करप्शन के आपके सामने हैं। शेखुपुरा में कम से कम 5-6 केसेस ऐसे हैं जो करप्शन के केस दर्ज हुए हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आप इस तरह तकसीम करें जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने माजी में, और आप जो है वो देखें कि एहसास प्रोग्राम किया, सेहत कार्ड किया, हर गरीब आदमी का डेटा नादरा से प्रोसेस हुआ, उसके मुताबिक उनको रिस्पेक्टेबल वे से जो है उनको कार्ड इशू हुए और के घरों में जाकर उनको पैसे मिले। तो आप भी कोई ऐसी ट्रांसपेरेंसी रखें, ऐसा कोई प्रोसेस, कोई मेथड डेवलप करें जिससे इन लोगों की तजलील। और आप देखें आटा लेते लेते वो लोग मर रहे हैं और बेचारे एक बंदा जो है वो कोई 10 थैले ले जा रहा है, किसी को एक भी नहीं मिल रहा, और वो सुबह से लेकर शाम तक एक आटा का थैला है, उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। और मेरे यही है इशू कि इनके एक तो क्वालिटी इंप्रूव करें और अपना सिस्टम को डेवलप करें। इंसाफ वेलफेयर विंग गुजरात के नायब सदर चौधरी शहजाद अब्दुल्ला का कहना है कि इमरान खान मुखालफिन के आसाब पर सवार हैं। चौधरी परवेज इलाही की पीटीआई में शमूलियत से पार्टी की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। आम इंतखाबात में पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने स्पेशल टीवी की ब्यूरो चीफ मुकद्दस मलिक आवान से बातचीत के दौरान किया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। मेरा सवाल है कि जिस तरह से अपोजिशन में हैं आप और हुकूमत जिस तरह से अपने मुख्तलिफ जो है ऊँचे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, या हुकूमत जो है वो इमरान खान पर ही तवज्जो किए हुए है, इस पर आप क्या राय देंगे?
सर देखिए, हुकूमत को तो इमरान खान के सिवा कुछ नज़र ही नहीं आता। मेरा ख्याल है वो सोते जागते ख्वाबों में उठते बैठते बस इमरान खान है। अच्छा, उनकी स्पीचेस में से अगर इमरान खान निकाल दिया जाए ना तो बाकी कुछ भी नहीं रहता। तो मईशत तो सारी दुनिया को नज़र आ रही है, यानी कि कहाँ हमारा मुल्क था दुनिया की नज़रों में। हमारे ओवरसीज़ भाई फ़ख्र से लोगों को बताते थे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर है, और प्यूटिन और मतलब जितने सुपर पावर्स के हेड है वो फ़ख्र महसूस करते थे खान के साथ बैठने को, खान को मिलने को। बड़ा अच्छा इम्प्रेशन था, और वो इम्प्रेशन भी गया, वो मईशत भी गई। बिल्कुल इन्होंने जो है ना पाकिस्तान को उठा के ज़मीन के नीचे समझे गाड़ दिए। अब फिर से खान साहब की हुकूमत आएगी, बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी उनको, फिर से कौम को भी उनका साथ देना पड़ेगा इस मुल्क को किसी लेवल पे ले जाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इलेक्शन आइन के मुताबिक 90 डेज के अंदर होने चाहिए थे, लेकिन 90 डेज के बाद का कह दिया, इस पर आपको क्या लगता है कि हुकूमत इलेक्शन करवाएगी? सरासर आइन शिकनी है ना जी, और मुझे मतलब मैं परेशान होता हूँ कि ये किस तरह ये इस तरह धड़ल्ले से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जो है वो मुस्तरद कर रहे हैं। फिर इन्होंने एक लॉ बनाया है। लॉ जो है ना, देखिए आइन में कोई तब्दीली लानी हो तो आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, नेशनल असम्बली में भी और सेनेट में भी। अब 362 का मेरा ख्याल है कोरम है नेशनल असम्बली का, तो 42 बंदों के सिग्नेचर से ये एक लॉ बना रहे हैं। वो भी ऐसा लॉ जो ये नहीं बना रहे, क्योंकि ये प्रोसीजर लॉ है और ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी डोमेन में आता है। ये वो सुप्रीम कोर्ट खुद इसमें चेंजेस ला सकता है। तो अगर इन्होंने करना है तो ये तो 2/3 मेजोरिटी से लेंगे। और फिर मजे की बात कि इनके किसी बड़े लीडर के सिग्नेचर नहीं है उन 42 बंदों में। इनका कोई बड़ा लीडर नहीं है, ना नवाज शरीफ साहब है, ना बिलावल है, ना ऐसा, मतलब ये बड़े लीडर्स जो है ना वो कोई भी नहीं है। ये जो इनके वो मखसूस सीटों वाले और वो जो अननोन किस्म के बंदे हैं बेचारे, उनको इन्होंने आगे कर दिया कि कल को कंटेम्प्ट लगे तो इन पे लगे। तो ये तो मतलब इलेक्शन को नहीं रोक सकते। लेकिन ये अगर इलेक्शन को ये रोकेंगे तो फिर ये बनाना रिपब्लिक है, फिर जिसका जो दिल करेगा वो करेगा। बिल्कुल सही। जिस तरह से गुजरात की सियासत है और चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने हैं, जम किया खुद को उन्होंने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नजरियाती रहनुमा हैं, कारकुन हैं, कैसा लगा उनको इस अमल से? देखिए मेरा ख्याल है जो तो नजरियाती कारकुन है उसको तो अगर उसकी पार्टी की ताकत बढ़ रही है किसी ऐसे बड़े लीडर के आने से तो उसको खुश होना चाहिए। तो खुश आइंद है परवेज इलाही साहब का आना। और एक और शख्सियत भी आई हैं पीटीआई में, चौधरी एजाज रनिया साहब, उनको भी वेलकम करते हैं, ये भी बड़ा खुश आइंद है। और गुजरात की पीटीआई में, डिस्ट्रिक्ट गुजरात में फिर सैयद फैजुल हसन शाह का अगर नाम ना लें तो बात अधूरी रहती है। सैयद फैजुल हसन शाह साहब ने अपने हलके में बहुत, ये लोग जो कहते हैं ना कि कहाँ पे डेवलपमेंट है, मैं उनको कहता हूँ कि सैयद फैजुल हसन शाह साहब का हलका देख लें, गांव, हर गांव देख लें, हर गांव में देख लें आप, सड़कें देख लें, गैस का काम देख लें, बिजली देख लें, गलियां देख लें, मतलब उन्होंने इतना काम किया है। और उनके नीचे जो एमपीएस थे उन्होंने भी, तो बड़ा काम हुआ है। और सैयद फैजुल हसन शाह साहब एक दरवेश सिफ्त आदमी है। इस तरह के एमएनएस हमें चाहिए। देखिए उनकी सादगी भी अरूज पे, और उन हर वक्त अवेलेबल हैं वो लोगों के लिए, मतलब 24 घंटे उनका डेरा खुला हुआ है। उनके भतीजे, उनके भाई सब जो हैं वो अपने हलके के लिए हरदम वो बैठे हुए हैं। और गुजरात में इंशाल्लाह ताला, गुजरात में क्या पूरे पाकिस्तान में पीटीआई का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। 21 रमजानुल मुबारक यौम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मौके पर लाहौर में पुलिस और इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। सीसीपीओ बिलाल सिद्दीक कमियाना और इंतजामिया के अफसरान ने मेट्रो बस ट्रैक से करबला गामे शाह का जायजा लिया। राना सईद की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। 21 रमजानुल मुबारक यौम अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मौका पर लाहौर में पुलिस और इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। सीसीपीओ बिलाल सिद्दीक कमियाना की मेट्रो बस ट्रैक आमद, डीआईजी ऑपरेशन अफजाल अहमद कौसर, डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर, एसएसपी ऑपरेशंस, एसपी सिक्योरिटी, पुलिस और जिला इंतजामिया के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। सीसीपीओ बिलाल सिद्दीक कमियाना ने मेट्रो बस ट्रैक से यौम अली के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। डीआईजी ऑपरेशंस अफजाल अहमद कौसर ने सीसीपीओ लाहौर को सिक्योरिटी इंतजामात के बारे में ब्रीफ किया।
اس موقع پر CCPO بلال صدیق کمیانہ کا کہنا تھا کہ شہر میں امن و امان کی صورتحال کو ہر صورت میں برقرار رکھا جائے گا۔ اس سلسلے میں تمام افسران و جوان سماج دشمن عناصر پر کڑی نظر رکھیں۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اصغر زیدی کا کہنا ہے کہ عمران خان کو یونیورسٹی میں باضابطہ اجازت لے کر دعوت دی گئی تھی۔ اس موقع پر کسی کو بھی PTI زندہ باد نعرہ لگانے کی اجازت نہیں تھی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک میں کیا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ میرا فارمر پرائم منسٹر عمران خان کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک جو ان کا سیاسی خیال ہے